Hello everyone. So we are going to discuss topic number 2.10, that is dielectrics and polarization. So dielectric एक मटेरियल का टाइप है एंड dielectric मटेरियल होता है वो नॉन कंडक्टिंग की कैटेगरी में आता है. So first thing is it is a non conducting substance. When we say that it is non-conducting, so you have to understand that कि उसमें कोई charge carriers भी नहीं होंगे. So there are no charge carriers. Right. Now, if we recall the behavior of a conductor in under an external field, तो उसमें क्या होता था? Let us consider that we have a conductor over here. This is कंडक्टर. ओके, ये कंडक्टर है एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट वाज इट्स बिहेवियर अंडर एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फील्ड है उसको ये लाइंस से दिखा रहे हैं. ओके, द एक्सटर्नल फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो एज वी नो कंडक्टर्स में वी हैव फ्री कैरियर्स. ओके, फ्री कैरियर से इसका मतलब क्या है कि whenever the conductor is placed in an external field, the carriers will start moving and it will adjust themselves such that it will oppose the external field and it will nullify the effect. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसमें जीरो होगा. लाइक और हियर मान लो कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम दिखा रहे हैं E0 से. राइट. ओके, हम उसको दिखा रहे हैं E0 से. Whenever the conductor is placed, so it will introduce a positive charges on its right side. Charges है, positive charges है, they will move towards the right side and the negative charges will move towards the right side and amount of this is such that it will induce an electric field EI which is exact and it is in opposite direction to the electric field. It means that if I will add both the electric field to find out the net electric field, then that will give me answer 0. तो total electric field इसमें 0 होता है. Right. When we talk about the dielectrics, okay, so in dielectric again let us consider a dielectric material placed under the external field. Again the field lines are from left to right and I'll show that this is the amount of electric field. Now as we discussed, there are no charge carriers to oppose this external electric field. So in this case what happens, the molecules which are inside the conductor, okay, they will have a tendency of either stretching or realignment such that they will also produce an induced field which opposes the external field. So again it will induce some fields. Okay, so this is due to either stretching or realignment of the molecules, right? But charge carriers are not movable. So over here induced field is having amount which is very less than the applied external field. It means that if I will add these two, external electric field and the induced electric field, then they cannot cancel out. देखो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोज तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आएगा. राइट. बिकॉज EI इज नॉट सफिशिएंट. राइट. जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल कर पाए. So this is the behavior that you should keep in mind, right? Dielectric के बारे में हमें ये चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए. Now, if we talk, so this is all about the
distribution, okay, charge distribution, and to understand it further we have to understand it at molecule levels, okay. तो molecule levels की बात करते हैं यहाँ पे. We know that we have, शायद आपने केमिस्ट्री में किया होगा, we have a polar molecules and we have non polar molecules. अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें देन वी नो दैट कि यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं. सेंटर्स है वो कोइंसाइड होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिजिकली दो जो एटम्स है उनको सेपरेट नहीं देख सकते हो. जैसे कि आप मान लो कि ये O2 का एटम है, राइट, ओके. तो एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, एंड देन आफ्टर दे आर मेकिंग वन O2 molecule. So in this case their centers are so coincide you cannot separate it out and the distance between them is zero. दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो है. So it means that it does not have any permanent dipole moment. No permanent dipole moment. So what is this? ये कैसे हम कह सकते हैं कि it does not have any permanent dipole moment? So as we know permanent dipole moment, कोई भी dipole moment है, हमने देखा है कि it is to be written as q into 2l, where 2l is the distance between two charges. हम dipole जब हमने chapter 1 में किया था, so we have talked about this. यहाँ पे वो 2a था at that time, right? So as we said कि their centers are coinciding. इसका मतलब है कि the distance between two centers of two charges is zero. इसका मतलब 2l है, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी. अगर ये जीरो हो गई इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, राइट. सो इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको ये दो चीजें दिमाग में बिठानी है, राइट. When we talk about the polar molecules, so in this case there is a certain distance, between the centers of the atoms, right. तो आप यहाँ पे H2O ले सकते हो, से हाइड्रोजन एटम इज देयर एंड आफ्टर टू ऑक्सीजन एटम्स आर देयर. तो ये H हो गया O and O, H2O molecule है, so that comes under the polar molecule category and in this case it has a dipole moment, okay. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि it has a permanent dipole moment, right. उसके पास ये dipole moment होती है. So that is the difference between the polar and non-polar. Now we are going to understand the behavior under an external electric field. अगर dielectric material को हमने external field में रखा, so at that time what is the behavior of these molecules that we want to study, and after that we talk about the polarization. So to understand the dielectrics in ये है नॉन पोलर, ओके. एंड नॉन पोलर में we are going to show each and every molecule with a plus and minus sign in the same circle. Why? Because their centers are coincide. तो इसीलिए दोनों को एक में ही दिखाना है, राइट. सो आई कैन शो इट लाइक दिस. और एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल है. As you can see, it is symmetrical from everywhere. Circle या sphere आप इमेजिन कर लो. So it is symmetrical from everywhere, and that's how यहाँ पे आप कोई orientation या alignment नहीं देख पा रहे हो, right? Now what happens? यहाँ पे क्या है? E है, external electric field है, वो अभी zero है. What happens once I will apply the field? तो मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, राइट. एज आई टोल्ड यू कि
whenever the external electric field is applied, so either there will be a stretching or there will be realignment in case of a dielectric. तो अगर नॉन पोलर है तो इसमें होती है स्ट्रेचिंग, राइट? तो यही चीज है, ओके। प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं यहाँ पे, सो प्लस की टेंडेंसी अभी क्या रहेगी, देखो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? ओके, सो पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, ओके, और ये माइनस है वो इस साइड पे आ जाएगा। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ सर्कल यू हैव टू ड्रॉ अ शेप लाइक दिस व्हिच शोज अ स्ट्रेचिंग, राइट? सिमिलरली ओवर हियर अनदर मॉलिक्यूल इज देयर, सभी मॉलिक्यूल्स में आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग दिखानी है, राइट? सो दिस इज द बिहेवियर अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन देयर विल बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग, राइट? लेकिन वो फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपोज में तो है, लेकिन इट्स अमाउंट इज स्मॉल सच दैट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, ओके। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पोलर मटेरियल, ओके, मान लो कि अभी हमारे पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उसमें अरेंजमेंट क्या होती है? तो अभी हमने देखा कि इफ इट इज अ पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन दैट देयर इज ऑलवेज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, तो मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से है, राइट? यू कैन सी दैट इट इज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड एंड इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इट हैज अ डाइपोल मोमेंट, राइट? देन आफ्टर यू कैन कंसीडर some other molecule like this, okay? आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो। over here due to thermal agitation, इसका मतलब क्या है कि due to temperature the molecules are like not stable and their orientation is also not fixed, okay? so हर एक का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, सुनना बराबर से सुनना, हर एक का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, बट इफ आई विल कलेक्टिवली ऐड ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट देन इट विल बी जीरो अंडर नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होता है, और यहाँ पे नेट या फिर टोटल डाइपोल मोमेंट है वो भी जीरो होती है। हर एक की इंडिविजुअल मोमेंट होगी, डाइपोल मोमेंट होगी, बट इफ आई विल ऐड देम देन इट विल बी जीरो, राइट? जैसे कि ये माइनस प्लस है, ओके, ये इस तरह से है, तो आप ऐसा सोचो कि और एक होगा जो प्लस माइनस होगा, इन दोनों को मैं अगर एड अप करूंगा तो इन दोनों की डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगी, नेट है वो जीरो होगी, राइट? Now what happens if I will place this polar dielectric material under external field? Okay, so let us consider that this is polar material and here is the electric field, okay? Now in this case what happens, stretching तो already हो चुका है, so there won't be any stretching, it is just और रीअलाइनमेंट या फिर जो भी ये मॉलिक्यूल्स है उनका ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेम फिगर है वो यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? यहाँ पे जिसका ओरिएंटेशन कुछ इंक्लाइन दिख रहा है, नाउ इट विल बी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिमिलरली सम अदर मॉलिक्यूल्स आर देयर, सभी का अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा एंड ईच इज गोइंग टू have such that के सभी का पॉजिटिव है वो राइट साइड पे आएगा और सभी का नेगेटिव है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, एंड अगेन देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ओवर हियर अगेन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो, राइट? इट इज नॉट सफिशिएंट टू कैंसल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक द कंडक्टर्स, राइट? तो ये हो गया बिहेवियर of polar and non-polar under external electric field. Now let us talk about the polarization. So
पोलराइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम दिखाते हैं वेक्टर p से, ओके, एंड इफ आई विल डिफाइन इट देन यू कैन से दैट इट इज अ dipole moment per unit volume. It is a dipole moment per unit volume, and we know that it is proportional to the external field. Okay, ये बात फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट? If the external electric field is more, then obviously the induced electric field is also increase, right? इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, राइट? तो यहाँ पे नेट वेक्टर पोलराइजेशन कैन बी गिवन एज काई, x नहीं है ये, प्लीज इसे बोलते हैं काई, ओके। सो काई e मल्टीप्लाइड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। सो व्हाट इज काई? काई ई क्या है? ओके, सो इट इज नोन एज अ ससेप्टिबिलिटी, इट इज नोन एज अ ससेप्टिबिलिटी, ओके। ससेप्टिबिलिटी के साथ यहाँ पे ई रखा है क्योंकि इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। whenever we will have a chapters of magnetics, at that time we will have a term magnetic susceptibility also, right? तो ये दोनों एक अलग अलग है, ठीक है? तो उस टाइम भी ये आने वाला है magnetic susceptibility, right? Yeah, so what is the significance of electrical susceptibility, right? उसका significance क्या है, क्या समझते हैं हम? So now consider that we are having two different materials, okay? तो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक में पोलराइजेशन ज्यादा हो, दूसरे में पोलराइजेशन कम हो। If its susceptibility is higher, then there will be more polarization. If susceptibility is low, it means that there will be a less polarization, right? तो ये कांस्टेंट है, ओके, और हर एक मटेरियल के हिसाब से वो चेंज होता है। So that's all for today. Thank you.